Hello guys, welcome back to my channel. Today we will study chapter 1, A Triumph of Surgery, from Supplementary Reader of English for class 10th, Footprints Without Feet. So let's get started. Before you read, Tricky is a small dog who is pampered and overfed by his mistress. His mistress is very rich. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? Now we have to find out the answer for these two questions in the whole chapter. Okay, by reading the whole chapter, by learning the whole chapter. Okay, so a veterinary surgeon is also called as vet. Okay, it is a animal doctor. You can say. Okay, now I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. So, what is the condition? What is the deplorable appearance of Tricky this time is he is on the street with his mistress, and his appearance is very deplorable, like he has become hugely fat like a bloated sausage, and his eyes are watery and red eyes. Okay, red and watery eyes are there, and he is staring straight ahead. His tongue is lolled from his teeth, from his mouth. Okay, now second paragraph, Mrs. Humphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving some little extras between meals to build him up. Some malt cold liver and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. So Mrs. Humphrey hasn't to explain. He was so listless. जो जो मिसेस पाम्फ्रे थी, वो उसने एक्सप्लेन करा जब वो वेट से मिली. जो राइटर है वही वेट है, ठीक है. जो राइटर है वो वेट है, और उससे जब देखा मिसेस फम्फ्रे को, मिसेस फम्फ्रे में मैंने भी उसे नोटिस करा, तो उसने एक्सप्लेन करा दैट ही वॉज सो लिस्टलेस, मीन्स hopeless. Okay, Mr. Harriet, he seemed to have no energy, and therefore I thought that he must be suffering from malnutrition. Malnutrition is, you can say, खाने की कमी. ओके, लाइक वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, इसीलिए उससे कोई काम नहीं हो रहा. सो आई हैव malnutrition एक तरीके से deficiency of nutrition हो गई, nutritious food, right? So I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt cold liver, bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही देती हूँ. And did you cut down on the sweet things as I told you? मिस्टर हेरियट बोलते हैं कि अच्छा, मैंने तुम्हें जो सजेस्ट करा था कि जो मीठा है उसे उसका जो मतलब खाना है वो कम कर दो. Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. अब जो मिसेस पाम्फ्रे है वो कहती है, हाँ मैंने थोड़ा सा किया था, लेकिन मुझे वो इतना वीक लगा कि मुझे उस आदत को छोड़ना पड़ा. और वो तो मतलब क्रीम केक्स को लव करता है और चॉकलेट्स उनके बिना रह ही नहीं सकता, तो और मैं उसे मना नहीं कर सकती. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Humphrey hadn't mentioned. So, in this paragraph, Mr. Harriet is explaining that he again noticed the dog, and the dog was really in trouble, in a great trouble, because he might fall seriously ill if these negative factors of food continue to operate. Okay, Tricky only fault was greed. He had never refused to eat food. There was not any fixed time when he will eat food, and he would tackle a meal at any hour. So this was his problem. Are you giving him plenty of exercise?
Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. हाँ, मैं नाउ दिस इसके एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या तुम उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज करवाते हो? तो उसने बोला हाँ, मेरे साथ थोड़ी सी वॉक्स करता है, लेकिन जो गार्डनर है वो भी कहीं गया हुआ है, तो उसके साथ ये रिंग थ्रोइंग वाले जो गेम है, एक्सरसाइज है, वो नहीं हो पाती. So this was a picture. Tricky was really hugely fat. Okay, I tried to sound severe. No, now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. Mrs. Pomfrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. तो क्या हुआ, अब जो मिस्टर हेरियर थे उन्होंने अपनी आवाज़ को थोड़ा कड़क आवाज़ में बोला कि अब मैं सच में ये बात बता रहा हूँ कि अगर तुम इसकी जो फूड है, वो इसके जो मील्स हैं, उन्हें कट नहीं करोगे और एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करवाओगे तो ये सच में बीमार पड़ जाएगा. और अब तुम्हें अपना मतलब हार्डन योर हार्ट, मतलब दिल पे पत्थर रख कर तुम्हें उसको वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, एक स्ट्रिक्ट डाइट पर फॉलो करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो सीरियसली इल हो जाएगा. और तो मिसेस पॉम्फ्रे ने अपनी एक ऐसी पोजीशन बनाई और कहा हाँ ज़रूर मिस्टर हेरियट, बट मुझे पता है तो आप एकदम सही है, लेकिन ये करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है. तो उसने ऐसी एक अपनी गेस्चर बनाया कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कि न्यू रेजाइम मतलब यही जो बात उसने कही कि स्ट्रिक्ट डाइट पर लेकर चलना है, तो यही न्यू रेजाइम है. यहाँ पर न्यू रेजाइम होता है न्यू रूल. तो इस रूल को वो अभी की अभी जो है प्रैक्टिस में लाने वाली है. Okay, I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for a cold weather, a raincoat for the wet days. He struggled on, dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pomfrey. अब इसका ये जो है ये कॉल से पहले का पैराग्राफ है. इसमें क्या है कि मैं जो है प्रोग्रेस देख रहा था और जो कंसर्न मिसेस पॉम्फ्रे ट्रिकी के लिए कर रही थी वो सब मैं देख रहा था. मीन्स वो नेबर थे ना, जो वेट थे वो मिसेस पॉम्फ्रे के नेबर थे, तो उन्हें वो सब दिखता था कि वो क्या करवा रही है, क्या नहीं करवा रही है. तो और यहाँ पे क्या बताया गया कि जो ट्रिकी था उसके पास मीन्स एक पेट के पास एक पूरा वार्डरोब था जिसमें उसके कोट्स थे, तरह तरह के कोल्ड वेदर के, रेन कोट था वेट डेज के लिए, मतलब सब था उसके पास जिससे कि उसे पूरा कंफर्ट और डेलिकेसीज मिल सके. ओके, तो और मुझे अब वेट ने कहा है कि मुझे लग ही रहा था, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि कोई कॉल आएगी और मिसेस पॉम्फ्रे ही मुझे कॉल करके उन्हें ही बताना पड़ेगा. नाउ द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. मिसेस पॉम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉयड, यानी कि मिसेस पॉम्फ्रे जो थी वो एकदम लिस्टलेस थी, एकदम डेस्परेट थी कि अब क्या होगा. वो बहुत विलिंग थी कि अब मेरे मतलब वो अपने पेट को ना अपने बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करती थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी उसने खाना छोड़ दिया, अपनी फेवरेट डिशेस को भी मना कर दिया, एंड इवन ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग. मीन्स अब वो बस बैठा रहना पसंद कर रहा था, मतलब बिता रहा था अपना समय बस बैठे बैठे. वो वॉक्स पर भी नहीं जा रहा था और वो कुछ भी नहीं करेगा, बस बैठा रहेगा, कुछ खाएगा भी नहीं. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब मैंने तो अपने प्लान्स एडवांस में बना लिए थे कि अगर ऐसा कॉल आता है, और मतलब मुझे तो पूरा विश्वास था ही कि ऐसा होने वाला है, अगर आप उसकी वो नहीं करोगे तो फूड कट डाउन नहीं करोगे, और तो मैंने अपने प्लान बना ही लिए थे. अब जब जो वे थी अब ट्रिकी को इस
कंडीशन से बाहर निकालने की वो ये थी कि उसे थोड़े टाइम के लिए कहीं बाहर लेकर जाओ उस घर से, जहाँ पर थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हो। ओके, तो और मैंने सजेस्ट करा मिसेस वाम्टे को कि उसे हॉस्पिटलाइज कर दें और जो है वो मेरी ऑब्जर्वेशन में रहेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। यहाँ पे सून्ड का मतलब क्या है? फेंट हो जाना, मीन्स लूजिंग कॉन्शियस। ओके, बेहोश हो, मतलब वो जो पुअर लेडी थी, अब हमें बोला गया पुअर लेडी, वो थी तो रिच, लेकिन ये बात सुनकर जो है वो पूरी बेहोश होने वाली स्थिति में थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब मिसेस ओमरे ने कहा कि अगर वो तो मर जाएगा अगर आप उसे रोज नहीं देखोगे। बट आई टुक अ फर्म लाइन। वेट कहते हैं मैंने एक पूरी फर्म मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मैंने एकदम स्ट्रिक्ट लाइन ली। और Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Humphrey wailing, I marched out to the car carrying uh, carrying the little dog wrapped in a blanket. तो मिसेस हम्फ्रे की जो क्राइस थी, यानी कि जो उनकी चिंता थी, जो वो रोने लगी थी, उसको देखकर मैंने अपना फटाफट से काम करना स्टार्ट करा। मैं अपनी कार लाया, डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप करा और मैंने उसे अपने पास रख लिया दूसरी सीट पर। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड, मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट क्वेश्चंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, supper bowl. Realizing that my car would never hold all that stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब क्या हुआ, जो पूरा एंटायर स्टाफ था, यानी कि जैसे कि मिस्ट्रेस जो थी वो बहुत रिच थी तो उसके पास स्टाफ भी बहुत सारा था। तो जब पूरा स्टाफ जो था वो अब वो मतलब थोड़ा सा दौड़ भागने लग गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट क्वेश्चंस, टॉयज, रबर रिंग्स, मतलब सारी जो उसकी खेलने की चीज़ें थी, सारे जो कंफर्ट्स थे वो उन्हें गाड़ी में डालने थे। और वेट को लगा कि इतना सारा स्टफ़ तो मेरी गाड़ी में आ ही नहीं पाएगा, तो उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वो जाने लगे। और जैसे ही वो जाने लगे तो मिसेस फम्फ्रे एक डेस्परेट क्राई, यानी कि थोड़ा सा रोते हुए, उन्होंने मतलब रो तो वह रही थी और ज़्यादा रोते हुए, डेस्परेट, होपलेस क्राई में उन्होंने एक आर्मफुल, यानी कि बहुत सारे लिटिल कोट्स जो है विंडो से डाल दिए। और मैंने जब मिरर से, रियर व्यू मिरर होता है ना, उससे देखा तो सब के सब जो हैं वो रो रहे थे, पूरा स्टाफ and Mrs. Pumphrey. Out on the road, I glanced down at a pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब इसमें क्या है, रोड पर जब हम मतलब वेट जो थे वो वेटनरी सर्जन जो थे मिस्टर हेरियट, जब वो अपने सर्जरी लेके जा रहे थे, यानी कि अपने क्लिनिक लेके जा रहे थे, तो उन्होंने एक बार अपने पैथेटिक लिटिल एनिमल पे देखा, यानी कि जिसकी कंडीशन बहुत डेप्लोरेबल थी, दयनीय थी। वो बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था, गैस्पिंग, यानी कि बहुत मुश्किल से वो सांस ले पा रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल। अब मैंने उसके हेड पर थोड़ा सा, जो वेट थे उन्होंने, वेटनरी जो मिस्टर हेरियट थे, उन्होंने ट्रिकी के सिर पर थोड़ा सा हाथ थपथपाया, जिससे कि ट्रिकी ने अपना पूरा एफर्ट करा कि वो अपनी जो पूंछ है उसे हिला सके, बट वो नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज देयर वॉज नो एनर्जी इन हिम। पुअर ओल्ड लैड, मतलब पुअर ओल्ड लैड, ये वेटरनरी सर्जन कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अब एक किक भी नहीं बची, लेकिन मतलब तुम इतने ज़्यादा इल हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्योर जानता हूँ। At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when he put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept.
For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he started to whimper when he heard the dogs in the yard. Now the explanation of these two is, at the surgery, means at the clinic, the household dogs, means the dogs that were already there na, they started to encircle Mr. Harriet. Okay, Tricky looked down because Tricky was in the uh, ट्रिकी लुक डाउन ऑन द नॉइजी पैक विद डल आइज, राइट। तो ट्रिकी जो था वो उनकी गोद में था, तो वो भी इतने मतलब वो नॉइजी पैक एक तरीके से था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनमें शोरगुल था। जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, एक बहुत डल आइज से उसने उनकी तरफ देखा, और जब जो मिस्टर हेरियर थे उन्होंने उसको नीचे रख दिया तो वो एकदम मोशनलेस हो गया, मतलब बिल्कुल हिल नहीं रहा था। तो जो लोग थे उन्होंने थोड़ा सा उसे जो डॉग्स थे उन्होंने ट्रिकी को नोटिस करा, बट ट्रिकी एक मोशनलेस ऑब्जेक्ट था, तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं जता, मतलब उन्हें लगा कि बहुत अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उन्होंने इग्नोर कर दिया। अब जो मिस्टर हेरियट थे उन्होंने उसके लिए बेड भी बना दिया था, वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर द, मतलब जहाँ पे अदर जो दूसरे पहले से जो रहने वाले डॉग्स थे वो सोते थे, वहीं पर उन्होंने एक और बेड बना दिया ट्रिकी के लिए। अब 2 दिन के लिए तो उन्होंने उस पर पूरी नज़र रखी और प्लेंटी ऑफ वाटर देते रहे, यानी कि 2 दिन तक उन्हें खाना देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, राइट। तो प्लेंटी ऑफ वाटर देते रहे, और सेकेंड डे के एंड में, यानी कि जो ट्रिकी था वो थोड़ा सा इंटरेस्ट अपने सराउंडिंग्स में दिखाने लगा, और तीसरे दिन वो अपने अपने सराउंडिंग्स में, जब उसने अपने जो दूसरे डॉग्स थे उनको सुना कि उनका जो ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया और थोड़ा सा उसने मूव करना स्टार्ट करा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound. अब यहाँ पे greyhound क्या है? एक breed है dogs की, और उस dog का नाम क्या है? Joe and his friend. After rolling him over, thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Surplus fat यानी कि surplus होता है extreme fat. Later the day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the unusual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. जब मैंने गेट खोला, यानी कि क्लिनिक का गेट खोला, तो मैंने देखा कि ट्रिकी जो था वो मतलब रोल कर रहा था, ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड, यानी कि वो जो डॉग्स थे वो सारे आपस में खेल रहे थे एक दूसरे के ऊपर रोल करके। और जब बाकी डॉग्स जो थे वो गार्डन की तरफ गए, तो ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया अपने सरप्लस फैट को साथ लेकर। लेटर द डे, मतलब उसी दिन थोड़ी देर बाद जब मील टाइम हुआ, राइट, जब खाने का टाइम हो गया, तो जो ट्रिसन था, ये कोई उनका हेल्पर होगा क्लिनिक में, तो उसने जब फूड को बाउल्स में डाल दिया, तो एक बहुत मतलब कंपटीशन से बचने के लिए ना, अपना मील शेयर करने के कंपटीशन से बचने के लिए सब बहुत तेज़ी से अपने बॉल्स के पास गए। ओके, when they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra ball was put up for him, and I was pleased to see him jostling his way toward it. जॉसलिंग यानी कि स्ट्रगलिंग, राइट। यहाँ पे क्या है, ट्रिकी जो था वो वैसे चलता रहता था, वॉकिंग करता रहता था जो शाइनिंग बॉल्स थे उनके अराउंड, लेकिन कैजुअली inside one or two of them. लेकिन अगले दिन एन एक्स्ट्रा बॉल, एक अलग से उसके लिए बॉल रख दिया गया, जैसे कि, और जो ट्रिकी था वो उसके लिए अपना स्ट्रगल कर रहा था कि उसे अपनी मील मिल सके।
From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on, squashed every few minutes. He became a respected member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. Now, in this paragraph, Mr. Hayden is explained as uh, visualized. We can visualize that Tricky, who always lived in a house with his rich mistress with all comfort and delicacies, now had to struggle. Right now, he has to struggle for his meals, and he can discover the joys of being bowled over, tramped on, squashed every few minutes, and now he has become an expected member. Means the member of the gang do not want to lose him because he is also a member of the gang now. And among the shaggy crew means untidy, okay, dirty crew में वो एक सिल्की ऑब्जेक्ट था, ओके, उसका जो रंग था वो कैसा था, सिल्की, लिटिल सिल्की था, राइट. नाउ फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, हंटिंग रैट्स इन द means he had never done such things in his life before he had come to clinic. All the while, Mrs. Fumbre hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the question about whether his questions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that little fellow was out of danger and convalescing rapidly. The word convalescing seemed to be too good to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, and to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had two eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. So now at the all the while, now जो है मिसेस फम्फ्रे, जो मिसेस फम्फ्रे थी वो क्वेश्चंस करती रहती थी, और हाँ, क्वेश्चन करती रहती थी, और मतलब उनका कम से कम 12 बार एक दिन में फ़ोन आ जाता था जैसे कि उन्हें लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके, राइट. तो वो पूछती रहती थी कि उसके क्वेश्चन सही से लगाए गए हैं या धोए गए हैं, और वो उसका वेदर के अकॉर्डिंग सही कोट उसे पहनाया जा रहा है, सही कपड़े उसे पहनाए जा रहे हैं या नहीं. और जो मिस्टर हेरियट थे उन्होंने मिसेस फम्रे को बता दिया कि जो फेलो था, यानी कि जो लिटिल डॉग है, वो अब डेंजर से बाहर है और अपना रिकवरी बहुत जल्दी कर रहा है. कॉन्वेलेसिंग का मतलब रिकवरिंग. द वर्ड रिकवरिंग सीम टू गुड टू डू समथिंग टू मिसेस फम्ब्रे. अब जब कॉन्वेलेसिंग, जब मैंने मिस्टर हेरियट ने कॉन्वेलेसिंग मिसेस फम्ब्रे को बताया, तो मिसेस फम्ब्रे को कुछ सच में अच्छा और कुछ उन्होंने भी करा. उन्होंने क्या करा, उन्होंने अब फ्रेश एग्स लाने चालू कर दिए 2 दर्जन एक बार में, जिससे कि जो है ट्रिकी की स्ट्रेंथ बन सके, राइट. तो अब जो मिस्टर हेरियट थे उन्हें ट्रिकी को तो देना नहीं था, तो ट्रिकी अब उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ उसे एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, ओके. एंड थोड़े दिनों बाद वाइन भी चालू हो गई, तो उन्होंने वाइन भी अपना चालू कर दिया. वी could hardly believe that it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the final spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk. There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Fumbre was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. Within minutes
About 30 feet of gleaming black metal drew up after the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Humphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped, means clenching in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?" "He's fine. There's no need for you to get out of the car. I will go and fetch him." I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling. Uh, I walked to the house in the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn in their mid. Our ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. Now, अब जो ट्रिकी था वो सच में बेटर हो गया था और वो बहुत जल्दी रिकवर हो रहा था. देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग विद एक्स्ट्रा एग. मतलब बहुत लग्जरियसली लाइफ जी रहे थे मिसेस फम्फ्रे भी. मिस्टर हेरियट. क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एग मिलता था और उनका जो दिन था वो ब्रेंडी के साथ स्टार्ट हो रहा था. ब्रेंडी इज़ वाइन, ओके. तो अब उनके एक टेम्पटेशन थी, उनकी एक इच्छा थी कि ट्रिकी को वो परमानेंट गेस्ट ही रख लें. क्योंकि मिसेस फम्फ्रे रोज़ लाएंगी उसके लिए थोड़ा सामान, लेकिन वो ट्रिकी को तो देते नहीं थे, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होए बिना इन सब चीज़ों के. राइट, फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्डअप होती, इसलिए वो खुद ही कंज्यूम करते थे. बट उन्होंने मिसेस फम्फ्रे की इमोशंस के साथ ना खेलते हुए उनको फ़ोन करा और कहा कि जो लिटिल डॉग है वो रिकवर हो चुका है और अब अवेटिंग कलेक्शन, यानी कि वो अब घर जाने के लिए इंतज़ार कर रहा है. ओके, विद इन मिनट्स, मतलब बहुत कुछ फ्यू मिनट्स में ही 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, यानी कि शाइनिंग ब्लैक मेटल, उनका कार थी ना, तो वो कार में आई मिसेस फम्फ्रे और मिस्टर हेरियट को पता चल चुका था कि अंदर मिसेस फम्फ्रे ही हैं. तो मिसेस फम्फ्रे ने पूछा कि मिस्टर हेरियट प्लीज़ मुझे आप सच बताओ, वो सच में बेटर है क्या? तो मिस्टर हेरियट ने कहा हाँ बिल्कुल, एंड आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं, मैं ही उसे यहाँ पे ले आता हूँ. अब मिस्टर हेरियट गए गार्डन में. वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे और उनमें बीच में एक गोल्डन फिगर थी जो कि ट्रिकी था. और मतलब जस्ट 2 weeks में, 2 हफ्तों में वो एक लिथे, यानी कि फ्लैक्सिबल और हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था. राइट, लिथे एंड हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था. और अब स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. मतलब वो एक बहुत, मतलब उसकी अब जो उसका गोल्डन फिगर था ना ट्रिकी का, वो बहुत एकदम हार्ड मसल एनिमल के जैसा लग रहा था और वो रियली वैसा हो गया था. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. द शॉफर was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap, sailed into Mrs. Fumfrey's lap. She gave a startled "oh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and balls, none of which he had been used. As the car moved away, Mrs. Fumfrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried, "how can I ever thank you? This is the triumph of surgery." So this is glossary of this chapter, and this is the image. Now the explanation for the last paragraph is that मिस्टर हेरियट अब उसे लेकर जाते हैं मिसेस फम्फ्रे के पास. और जैसे ही मतलब शॉफर ने, यानी कि ड्राइवर, शॉफर कौन है? ड्राइवर है. उसने गेट अभी तक ओपन ही रखा था मिसेस फम्फ्रे का, और जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस फम्फ्रे को देखा वो ओवरजॉयड हो गया और वो उनकी लीप से, यानी कि उनकी गोद से एक बहुत तेज़ी से मिसेस फम्फ्रे की लैप में गया और जाके जो मिसेस फम्फ्रे को लिक करने लगा बहुत ज़्यादा प्यार से. राइट, वो इतना खुश था
तो ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्ड द शॉफर टू ब्रिंग आउट। अब इसी एक्साइटमेंट में उन दोनों को छोड़ दिया और शॉफर और मिसेस हेरियट सारा का सारा जो स्टफ आया था क्लिनिक में वो वैसा का वैसा वापस भेज दिया गया विदाउट बीइंग यूज्ड, यानी कि उसे यूज़ भी नहीं करा। मिसेस पम्फ्रे जो थी वो विंडो से बाहर झाँक रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे और हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, मतलब वो बहुत खुशी से ओवरजॉयड थे। ओ मिस्टर हेरियट, हैव यू एवर, मतलब मैं तुम्हें आपको कैसे मैं शुक्रिया कर पाऊँगी, मैं कैसे आपको धन्यवाद कह पाऊँगी। ये एक ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी होती है क्लिनिक और उसकी जीत है। ओके, सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय जेम्स हेरियट इटसेल्फ। होप यू अंडरस्टूड, होप यू